आज का वीडियो है पार्ट 2 ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एन इनकम स्टेट ऑफ अ कंपनी। आज के वीडियो में हम कॉस्ट साइड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। Hi everyone, welcome to Insider Gyan. My name is Soumi. I'm an IIT Delhi and ISB Hyderabad grad, and for the last 8 years I have been working across management consulting and banking. इस चैनल पे मैं अपने करियर एक्सपीरियंसेस शेयर करने के साथ साथ थोड़ा सा बिजनेस नॉलेज भी शेयर करती हूँ, so that you can get a better understanding of business related things. So if that's something that interests you, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। एंड आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है ऑफ अ वीडियो दैट आई पोस्टेड लास्ट वीक व्हिच वाज पार्ट 1 लास्ट ट्यूसडे। सो आई थिंक आई वुड रेकमेंड you go and watch that video first and only then come and watch this. So just to give you some context, we were trying to understand a profit and loss statement of a company. Profit and loss statement में दो major components होते हैं. One is the revenue side and the other is the cost side. तो रेवेन्यू साइड ऑफ थिंग्स हमने लास्ट हफ्ते के वीडियो में कवर किया था एंड कॉस्ट साइड ऑफ थिंग्स विल कवर इन टुडेज वीडियो। ऑल्सो थ्रू दीज वीडियोज यू विल नॉट ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड द P&L स्टेटमेंट्स बट ऑल्सो बी एबल टू अप्लाई इट इन केस इंटरव्यूज। फॉर एग्जाम्पल इन अ जॉब इंटरव्यू और इन अ कंसल्टिंग इंटरव्यू यू विल बी एबल टू यूज दीज एज फ्रेमवर्क्स। So let's try and understand costs of a company's income statement. So costs के भी दो components होते हैं, दो key components होते हैं. Number one are the direct costs. Most of the cases it is the variable cost of manufacturing of a company. Or the second component are the indirect costs, which are more fixed in nature. So if we try and understand firstly more about the direct costs, इसका मतलब क्या होता है? Like I said, these are variable costs, which means higher the quantity of the product that you are manufacturing, the higher is going to be the cost of it. Just to give you an example, मान लो आप एक शिकंजी like नींबू पानी बेचने की कोशिश कर रहे हो. What are the raw materials, right, of that नींबू पानी? It's going to be lemon, it's going to be maybe a squeezer, it's going to be sugar. The cost of all of these things is going to be a direct cost. जितना ज्यादा आप नींबू पानी बेचना चाहोगे उतने ही ज्यादा आपको लेमन्स चाहिए होंगे, उतना ही ज्यादा आपको चीनी या शक्कर चाहिए होगा, right? This is also called the cost of goods sold or COGS in a very like a business kind of a language. The other kind of direct or variable cost could also be marketing. मार्केटिंग का एक्चुअली एक फिक्स्ड कंपोनेंट भी होता है बट वेरिएबल कंपोनेंट भी है। मींस आप जितना ज्यादा अमाउंट बेचना चाहोगे उतना ज्यादा ही पैसा आपको मार्केटिंग में खर्च करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ वन प्रोडक्ट इज से 10 रुपीज। सो इफ यू हैव टू सेल 100 प्रोडक्ट्स देन 100 into 10 रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा। सो योर कॉस्ट्स आर गोइंग टू इंक्रीज बाय दैट अमाउंट, राइट? So that was about the direct costs. The next one is indirect costs. Indirect costs are काफी बार they are fixed in nature. If you have a manufacturing plant, then that is a fixed cost, right? क्योंकि आप उस manufacturing plant में 10 units produce करो या 100 unit produce करो या 1000 unit produce करो, पूरा जो factory है उसको maintain करने का cost, उसका maybe electricity, वो सारा cost आपको fixed way में pay करना ही पड़ेगा. The more number of units that you are able to produce of that manufacturing quantity, the better for you. क्योंकि उतने ही cost में आपको ज़्यादा products मिल रहे हैं. The other kind of indirect cost could be overhead expenses. जैसे कि आप लोग hire कर रहे हैं, if you have resources, if you have say 10 resources, उनका हर महीने का salary fixed है, आपको देना ही पड़ेगा. चाहे उस महीने में resources को ज़्यादा काम रहा हो या कम काम रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. एक fixed amount है जो आपको उन रिसोर्सेज को पे करना ही पड़ेगा इन सैलरी। और मे बी समथिंग लाइक एन ऑफिस स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक से कंसल्टिंग कंपनी है, उनके पास एक ऑफिस स्पेस है, चाहे सब लोग आ रहे हो ऑफिस या नहीं आ रहे हो, जस्ट बिकॉज द कंपनी हैज बॉट दैट स्पेस, दे हैव टू pay for that space. It may be rent or electricity or maintenance cost, जो भी. So these are all costs that are fixed in nature. Now अब हम समझते हैं कि when you are looking at a profit and loss statement, what are the different elements of it? क्योंकि costs तो इतने तरह के होते हैं, right? Revenue minus costs is usually the profit, but क्योंकि costs different तरह के होते हैं, there are different types of profits as well. Okay? So typically we start with revenue.
रेवेन्यू, उससे हम सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो माइनस कर देते हैं. सो रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट गिव्स यू द ग्रॉस प्रॉफिट. अब ग्रॉस प्रॉफिट से हम इनडायरेक्ट कॉस्ट्स भी माइनस कर देते हैं जो फिक्स्ड इन नेचर है. उसके बाद हमको जो मिलता है दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. उसको हम बिजनेस लैंग्वेज में ईबिट भी बोलते हैं, EBIT, which means earnings before interest and taxes essentially. अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से आप नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट्स निकालोगे, राइट? नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट्स क्या होते हैं? थिंग्स लाइक टैक्सेस और इवन इंटरेस्ट अगर आपको पे करने हैं, कोई फाइनेंसिंग चार्जेस पे करनी है, वो कॉस्ट्स आप माइनस करोगे, तब जाके आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, विच इज द फाइनल प्रॉफिट दैट यू गेट ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ, वट एवर द पीरियड में बी. सो जैसे कि आपने देखा कि हर प्रॉफिट एंड कॉस्ट्स का टर्म अलग अलग है. जब भी आप कोई केस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आई थिंक यू शुड लिसन टू द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली. व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व? इज इट द ड्रॉप इन नेट प्रॉफिट्स और इज इट द ड्रॉप इन ग्रॉस प्रॉफिट? व्हाट इट इज, राइट? अब हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हर एक कॉस्ट में व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस दैट कुड लीड इन सम ऑफ द costs increasing or decreasing, right? ये काफी helpful होगा आप जब केस सॉल्व कर रहे होंगे. For example, direct costs. What are some of the reasons why direct costs could be increasing? The number one reason could be that आपका जो raw materials का cost है उसी का प्राइस बढ़ रहा है. मे बी चीनी का प्राइस बढ़ गया तो आपके नींबू पानी का जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट? सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. इट कुड ऑल्सो बी द कॉस्ट ऑफ सप्लाई इंक्रीजिंग फॉर यू. मे बी आपके पास जो सप्लाई चेन में जो सप्लायर्स है, आपके सप्लायर्स बहुत कम है तो उनके पास पावर काफी ज्यादा है, उनके पास ज्यादा प्राइस चार्ज करने का पावर है एंड उन्होंने मे बी शुगर का प्राइस बढ़ा दिया है आपके लिए, तो आपका अगेन कॉस्ट बढ़ जाएगा. देयर कुड आल्सो बी अदर रीजंस ऑफ योर रॉ मटेरियल कॉस्ट्स टू इंक्रीज. मे बी आप जो रॉ मटेरियल्स है वो काफी दूर जगह से सोर्स कर रहे हैं, विच मीन्स जो वहां से यहाँ तक का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वही आपका बहुत ज्यादा है. विच मीन्स अगर चीनी का प्राइस नहीं भी बढ़ा बट चीनी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ज्यादा है कि ओवरऑल आपको लगेगा कि चीनी आपको ज्यादा महंगा खरीदना पड़ रहा है. That could be another reason why the costs are increasing. And by no means these are exhaustive set of reasons. जब भी आप कोई केस सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको थोड़ा क्रिएटिविटी से सोचना पड़ेगा उस केस के स्पेसिफिक, राइट? What could be some of the areas why your costs could be increasing, and then you have to portray that to your interviewer. Okay, so then moving to indirect costs, what could be some of the indirect costs or fixed costs that could be increasing? Now fixed costs वैसे तो fixed in nature है, right? उनका long term contract होता है. अगर आपने कोई office space खरीदा है या manufacturing unit खरीदी है तो आपका 5 साल का contract है मान लीजिए, या फिर 10 साल का contract है. So that way fixed cost will never increase as such, but अगर उस फिक्स कॉस्ट को यूज करके आप कम अमाउंट, कम क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, देन ऑफ कोर्स योर पर यूनिट प्राइस बिकम्स मच हायर, राइट? वर्सेस अगर आप बहुत सारे यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मे बी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कॉस्ट है 100 रुपए और आप 100 चीजें प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उस प्लांट में, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गया? 1 रुपीज, राइट? Let's take another situation where manufacturing plant का कॉस्ट तो आपका 100 ही रहेगा, बट मे बी आप सिर्फ 10 ही यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे 10 गुना ज्यादा हो गया, 10 रुपए हो गया. सो दैट्स हाउ यू शुड लुक एट फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ how could you reduce the fixed costs? By increasing the utilization. So just to give you an example, maybe आपके पास 2 manufacturing plants है, both of them are like functioning at 50% capacity. तो वो अपने 100% यूज ही नहीं कर पा रहे. तो in that situation, one way to reduce your fixed cost could be closing the second manufacturing facility altogether and increasing the utilization of your current manufacturing plant to 100%. अब आप शायद ये बोल सकते हैं कि ये तो बहुत ही obvious सी बात है, right? So why would companies not do it themselves? The reason is ये जो utilization है, इन सब चीजों को track करना difficult होता है. Companies कई बार अपने जो प्रोसेसेस है उसमें लगे रहते हैं, उनको कोई भनक भी नहीं होती कि उनकी यूटिलाइजेशन क्या है. उनको जब तक कोई एक्सटर्नल आके बताता नहीं है कि आपकी इस प्लांट की यूटिलाइजेशन बहुत ही कम है, यू नीड टू इंक्रीज इट, समटाइम्स दे माइट नॉट थिंक ऑफ इट दैट स्ट्रेटेजिकली. सो दैट इज हाउ यू एनालाइज द कॉस्ट साइड ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट व्हेनेवर
in a case interview, you are asked about profitability related things, cost or revenue related things, तुरंत आपका mind map ऐसा हो जाना चाहिए कि okay, profits there are two components, revenues and costs. Revenues are price into quantity, costs के अंदर direct costs है, indirect costs है, and फिर आप चारों component को analyze करेंगे, depth में जाएंगे और फिर आप answer निकालेंगे कि what are some of the things that are impacting the profitability or sales or costs in that specific situation. Solving a case, trust me, is all about breaking it down into smaller chunks which becomes more easily solvable, if I can put it that way. So if you liked what you saw in this video so far, please hit the like button and please मुझे comment करके बताओ if I should continue or discontinue this series of educational videos, if they are providing value to you or not. And yeah, that's about it for this video. Subscribe to the channel, please, and I'll see you next one. Till then, bye.